بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریسی اور کمپوزیشن کا یہ سیکنڈ لیکچر ہے جس میں آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک اردو سے انگلش اگر پیراگراف آتا ہے، اگر تو نہیں یقینی طور پر آپ کو آئے گا، تو اسے ہم کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ایک لیکچر ہم آلریڈی کر چکے ہیں جس میں آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بیسک رولز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں اٹینڈ کیا تو پہلے آپ اس لیکچر کو دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بیسکس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے علم ہو جائے گا، اور پھر آپ بہتر طریقے سے ٹرانسلیشن کو سمجھ سکیں گے کہ آپ نے اسے کرنا کس طرح سے ہے۔ اس لیکچر میں ہم ٹرانسلیشن کریں گے CSS 2022 کے پیراگراف کی، اور یہ ایک پریکٹس ہے۔ میں آپ کو 1 سے 2 یا 3 اور پیراگراف اس طرح سے کروا کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کروں گی، اور ہوپ فلی کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ایک پیراگراف کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس میں امپروومنٹ کس طرح لے کر آ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ لیکچر کس طرح سے آگے موو کرتا ہے۔ یہ پیراگراف تھا جو 2022 کے پیپر میں CSS کے پیپر میں آیا تھا، اور اس کو پہلے ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جی یہاں پہ کیا ہے کہ ہر دور اپنے ساتھ کچھ ایسے بہت سے معاملات بھی لے کر آتا ہے جو کسی کی پسند کے نہیں ہوتے مگر انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو جی یہاں تک ایک فرسٹ لائن آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ نے اس کو 1 مارک کر لینا ہے، یہ فرسٹ آپ کی لائن ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت ہمیں آزمانے کی خاطر ایسا بہت کچھ ہمارے سامنے رکھی ہے جو ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اسے زندگی کا حصہ بناتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کے پاس دوسری لائن ہے، اور اس دوسری لائن کو ہم سیکنڈ کا نام دے دیتے ہیں، یہ نمبر 2 ہو جائے گی۔ اس کے بعد آج بھی ایسا ہی چل رہا ہے، ہر صدی اپنے ساتھ ایسی تبدیلیاں لاتی رہی ہے جو گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں بالکل نئی تھیں۔ یہاں تک آپ کا تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے، یہ تھرڈ لائن ہے جس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد فطری علوم و فنون کی ترقی نے انسان کو ایسا بہت کچھ دیا ہے جسے علمی اور معاشی عمل کا کچرا قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک آپ کا چوتھا پوائنٹ بن جاتا ہے، یعنی یہ چوتھی لائن ہے جسے آپ ٹرانسلیٹ کریں گے۔ پھر آتا ہے کہ قدرت ہمیں پھل دیتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کا پابند کرتی ہے کہ اس کے چھلکوں کو ڈھنگ سے ٹھکانے لگائیں۔ یہ آپ کی 5ویں لائن ہے، ففتھ۔ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، اگر ایسا نہ کیا جائے تو ملک کی غلاظت بڑھتی ہے۔ یہ نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس پیراگراف کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں بتائی گئی اس میں، یا کوئی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ چیزیں یا سینٹینسز نہیں ہیں، بلکہ آخری کی جو لائن ہے کہ قدرت ہمیں پھل دیتی ہے، یہ ڈبل میننگ کے اندر بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ پہلے جو انیشیل اٹیمپٹ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہر دور اپنے ساتھ بہت سے ایسے معاملات لے کر آتا ہے جو کسی کی پسند کے نہیں ہوتے مگر انہیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر ہم اس کو بالکل ورڈ ٹو ورڈ اور بالکل اسی وے میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ ایچ پیریڈ برنگز مینی ایشوز دیٹ نو ون لائکس بٹ ایوری ون ہیز ٹو ایکسپٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہیز ٹو 2 دفعہ لکھا گیا، آپ اس کو 1 دفعہ کر دیجیے گا، یہ ہیز ٹو ایک ہی دفعہ ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی کیا کرنا آپ نے، کیونکہ یہ ایک انڈیفینٹ کیس ہے تو اس میں آپ نے کیا کیا، آپ نے ایس اور ای ایس کا اضافہ کرتے ہوئے اس سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کر دیا۔ کوئی ایسا مشکل ورڈ نہیں تھا اس میں جس کو ٹرانسلیٹ نہ کیا جا سکتا ہو۔ پھر آپ نے کہا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت شاید ہمیں آزمانے کی خاطر ایسا بہت کچھ ہمارے سامنے رکھی ہے جو ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، پھر بھی زندگی کا حصہ بنانا، زندگی کا حصہ بناتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ اب یہ وہ سینٹینس ہے جو کہ بہت پیراگراف کا سب سے لمبا سینٹینس ہے، اور اس سینٹینس کو مینج کرنا آپ نے کس طرح سے ہے، آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا، اصولاً آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا میننگ کیا نکل رہا ہے، اور پھر اسے آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر میں اس کو اسی طرح سے ٹرانسلیٹ کروں
जिस तरह ये सेंटेंस लिखा गया है तो ये कुछ इस तरह से होगा कि समटाइम्स, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुदरत शायद हमें आजमाने की खातिर ऐसा बहुत कुछ हमारे सामने रखती है। यहाँ तक ट्रांसलेट अगर मैं करूँ तो मैं इस तरह से करूँगी कि समटाइम्स नेचर टेस्ट अस बाय ब्रिंगिंग अनरिलेटेड थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि नेचर ने हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें रखी जो हमारी आजमाइश का हिस्सा है। फिर इसके बाद मैंने इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया, यानी इसका जो इस सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट है इसको ट्रांसलेट आप किस तरह से कर सकते हैं या सिंपल सेंटेंस के अंदर किस तरह से करेंगे। अच्छा, जो हमारे मतलब का नहीं होता बल्कि इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं होता मगर फिर भी इसे जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए चलना पड़ता है। तो फिर आपने क्या किया, इसको इन फ्रंट ऑफ अस दैट वी रियली डू नॉट लाइक और हैव नथिंग टू डू विद इस विद अस स्टिल वी हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब अगर आप इस सेंटेंस को पे गौर करेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये इतना बड़ा जो सेंटेंस था इसको मैनेज किस तरह से किया गया है विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स की जो अहमियत होती है किसी भी सेंटेंस में बड़े सेंटेंसेस को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने में और उसको समझने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये स्टिल के बाद भी कॉमा लगाया गया है। अच्छा, विद अस के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं आप, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको दो सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर उर्दू में आपका एक सेंटेंस है तो दूसरा सेंटेंस भी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए भी आपने उसको एक ही सेंटेंस में रखना, आप इसको दो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पे भी कॉमा लगा के और स्टिल को एस को स्मॉल रख के आप इससे आगे लेके चल सकते हैं और सिर्फ, लेकिन अगर आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने एस जो है वो कैपिटल रखना है। ठीक है, इसके बाद जो सेंटेंस हमारा बनता है आज भी ऐसा ही चल रहा है, हर सदी अपने साथ ऐसी तब्दीलियां लाती रही है जो गुज़िश्ता सदियों के मुकाबले में बिल्कुल नई थी। तो हमने इसको क्या ट्रांसलेट किया, सिमिलरली, यानी आज भी ऐसे ही चल रहा है। अब इस पूरे सेंटेंस को सिर्फ एक ही वर्ड में हमने ट्रांसलेट कर दिया, सिमिलरली, यानी अब ऐसा ही है। Each century brings with it such changes that are new as compared to the previous centuries। यानी पिछली सेंचुरीज की निस्बत अब जो चीजें लेकर आ रही है, ये सदी जो हमारे सामने चीजें लेकर आ रही है वो टोटली नई है। फिर हम सेंटेंस आता है कि फतरी अलूम और फनून की तरक्की ने इंसान को ऐसा बहुत कुछ दिया है जैसे इल्मी और माशी अमल का कचरा करार दिया जा सकता है। देखिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज या हर इल्म और फनून जो है वो उसने हमें फायदा ही दिया है, उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। वो बाय प्रोडक्ट्स हमें इकोनॉमिकली और कुछ इकोनॉमिकली वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे किसी चीज़ की प्रोडक्शन के साथ साथ एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है और वेस्ट जो होता है वो भी इंसान के लिए नुकसानदेह होता है, अगरचा कि जो प्रोडक्ट होती है, असल प्रोडक्ट होती है, वो फायदेमंद है। हमने इसको किस तरह से कहा लिखा, हमने कहा जी द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड आर्ट्स हैज गिवन मैन अ लॉट which can be termed a waste of scientific and economic processes। ठीक है, साइंटिफिक और इकोनॉमिक प्रोसेसेस का कुछ वेस्ट या कचरा जो है वो बन जाता है, उनको करार दिया जा सकता है। फिर हमने कहा कि कुदरत हमें फल देती है तो साथ ही साथ इस बात का पाबंद करती है कि इसके छिलकों को ढंग से ठिकाने लगाएं। हमने इसे क्या ट्रांसलेट किया, इफ नेचर गिव्स अस फ्रूट, अगर हमें कुदरत फल देती है एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, और उसी साथ ही साथ के लिए हमने क्या किया, एट द सेम टाइम कॉमर्स लगा के binds us to dispose of its peels properly, कि इसके जो छिलके हैं उनको ढंग से ठिकाने लगाया जा सके। तो ये बेसिकली जो हमने ट्रांसलेट किया है इसको इसके डबल मीनिंग के अंदर नहीं किया बल्कि क्या किया हमने, बिल्कुल सेम वैसे ही जो कि लिखा गया है फल और छिलके उन्हीं की शक्ल में इसको ट्रांसलेट कर दिया। अगर ऐसा ना किया जाए तो मुल्क की गलाजत बढ़ती है। ठीक है, इफ नॉट डिस्पोज करेक्टली द एनवायरमेंट या लैंड, मुल्क जो भी आप कहना चाहें, एनवायरमेंट या लैंड गेट्स पोल्यूटेड, वो पोल्यूट हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें गंदगी जो है बढ़ती है। अब ये सेंटेंस या ये जो पैराग्राफ आपने लिखा है या हमने इसको लिखा है, ठीक है, फाइन, इट्स फाइन, ग्रामेटिकली ठीक होगा, ये आपका प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे जो पैराग्राफ है उसी को ही ट्रांसलेट कर दिया गया। लेकिन अब मैं आपको इसका एक और वर्जन दिखाने लगी हूँ जिसमें जो कि इस पैराग्राफ को ना सिर्फ शॉर्ट कर देगा बल्कि इसमें नए वर्ड्स को इनकलकेट करेगा, आपको नए नई एक वोकेबलरी में इजाफा और वोकेबलरी का इस्तेमाल
और आपने किस तरह से अच्छे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए इस पैराग्राफ को आप बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये कैसे होगा ये भी मैं भी आपको चल के बताती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा इसको देखते जाएं। तो पहला सेंटेंस था, हमने लिखा ईच पीरियड ब्रिंग्स मेनी शूज दैट नो वन लाइक्स बट एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, ये एक्सेप्ट करता है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से कर लें कि ईच पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी जो भी वक्त गुजरा है उसका हर वक्त जो है उसमें मल्टीपल इश्यूज, हमने मैनी इश्यूज नहीं लिखा, मैनी बहुत कॉमन वर्ड है, अगर आप मैनी लिखते हैं फाइन, इट्स फाइन, एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन अगर आप इसको मल्टीपल इश्यूज लिख देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट डालेगा। दैट नो वन लाइक्स बट हैज टू बाइट द बुलेट। हैज टू बाइट द बुलेट का मतलब क्या है कि बुरी सिचुएशन है बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, उसे कबूल करना पड़ता है। दूसरा सेंटेंस, तो ये एक ना सिर्फ छोटा हो गया सेंटेंस बल्कि ये ज्यादा इम्पैक्टफुल भी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें जिसमें हमने लिखा कि समटाइम्स नेचर टेस्ट अस बाय ब्रिंगिंग अनरिलेटेड थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस दैट वी रियली डू नॉट लाइक और हैव नथिंग टू डू विद अस, स्टिल वी हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो अगर हम इन सारे एक बहुत ही डिफरेंट वर्ड्स की अजीबोगरीब कम्बिनेशन के बजाय अगर हम इसको थोड़ा सा सेंसफुल कर लें तो क्या बनेगा, हम कहेंगे कि समटाइम्स नेचर पुट्स अस टू टेस्ट, यानी वो हमारी आजमाइश लेती है बाय ब्रिंगिंग एक्सट्रेनियस सब्सटेंसेस फॉर अस। किस तरह से कि जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। अब हमें इसको बार बार ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है कि कुदरत हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें ला के रखती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अब ये दो सेंटेंसेस को सिंपल एक वर्ड के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज एक्सट्रेनियस सब्सटेंसेस। तो ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल सेंटेंस हो जाएगा। दैट डजंट इवन फ्लोट ओवर बोर्ड। डजंट इवन फ्लोट ओवर बोर्ड जो है इट्स अ इडियम, और इसका मतलब ये है कि जो आपके मतलब की चीज नहीं है। ठीक है, तो जो आपके मतलब की चीज नहीं है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। जैसे हमने ट्रांसलेशन के पैराग्राफ में पढ़ा कि हमारे मतलब की जो चीज नहीं होती, तो यू कैन यूज दिस वर्ड और ईडियम। स्टिल वी हैव टू इंक्लूड इट इन अवर लाइव्स। और हमने क्या देखा था कि फिर भी उसे जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए चलना पड़ता है, यानी जो भी चीज होती है उसको इंक्लूड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस ज्यादा इम्पैक्टफुल हो गया, अच्छी वोकैबुलरी के साथ हो गया, ईडियम भी इसमें हमने इस्तेमाल कर लिया, ये शॉर्ट भी हो गया और ये कंफ्यूजिंग भी नहीं रहा। और बहुत इजीली आप इसको देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा कि समटाइम्स नेचर पुट्स अस टू टेस्ट बाय ब्रिंगिंग एक्सट्रेनियस सब्सटेंसेस फॉर अस that doesn't even float overboard, still we have to include it in our lives। मीनिंग कन्वे हो गया पूरा एक सेंटेंस का, जो उर्दू में इन्होंने लिखा था बाज औकात से लेकर जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए चलना पड़ता है, ये पूरा सेंटेंस जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और टूटा फूटा सेंटेंस लगता था, लेकिन हमने क्या किया कि हमने इसको एक बेहतर इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया। थर्ड सेंटेंस पे आ जाए, हमने क्या लिखा था कि similarly each century brings with it such changes that are new as compared to the previous one। अगर हम इसको थोड़ा सा, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं की, लेकिन क्या हुआ कि हमने इसमें थोड़े से चेंजेस, थोड़े से वर्ड्स को ऐड किया। जैसे हमने कहा कि similarly each century brings with it such new things या such new changes, और पहले सेंटेंस के अंदर हमने क्या किया था, ब्रिंग्स विद इट सच चेंजेस दैट आर न्यू। अब सच चेंजेस दैट आर न्यू के बजाय अगर आप सिंपल न्यू चेंजेस कर लेंगे तो आपका सेंटेंस ना सिर्फ शॉर्ट हो जाएगा बल्कि ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ज्यादा मेच्योर राइटिंग कहलाती है ये। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि सिमिलरली ईच सेंचुरी ब्रिंग्स विद इट सच न्यू चेंजेस which are totally different from the previous one। जो पिछले वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हमने कंपैरिजन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, हमने कहा कि जो प्रीवियस वंस थी, प्रीवियस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी गई है लेकिन बहरहाल आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, PREVIUS प्रीवियस होगा, तो आप इससे करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बड़ा लंबा चौड़ा हमने लिखा था, हमने कहा जी डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड आर्ट्स हैज गिवन मैन अ लॉट व्हिच कैन बी टर्म्ड एज अ वेस्ट ऑफ साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक प्रोसेसेस। इतनी बात को, एक सिंपल सी बात को अगर आप बहुत डिफिकल्ट करके प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रही होगी। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि हम इसको किस तरह से एक बेटर इंग्लिश में बेटर मीनिंगफुल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये लिखा कि प्रोग्रेस इन नेचुरल साइंसेज एंड आर्ट्स, ठीक है, नेचुरल साइंसेस और आर्ट्स में जो भी तरक्की होती गई है, हैज इक्विप्ड मैन, उसकी वजह से इंसान को क्या चीज मिली है, विद साइंटिफिक और इकोनॉमिक बेस्ड। ठीक है, जो अननेसेसरी वर्ड्स थे हैज एंड व्हिच कैन बी, ये सब हमने हटा दिए और इस सेंटेंस को ना सिर्फ शॉर्ट कर दिया बल्कि ये ज्यादा मीनिंगफुल में भी हो गया। देन
हमारा सेकेंड लास्ट सेंटेंस जो था वो ये था कि नेचर गिव्स अस फ्रूट एंड एट द सेम टाइम बाइंड्स अस टू डिस्पोज ऑफ इट्स पील्स प्रॉपरली। यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को किस तरह से किया, हमने कहा जी नेचर गिव्स अस फ्रूट, देती है। अच्छा, ये जो यहाँ पे सेंटेंस है इस पे भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे भी इफ नहीं आएगा, ये वाला जो सेंटेंस है ये भी नेचर से ही शुरू होगा, इफ नहीं आएगा। इसको प्लीज काट दीजिएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। Nature gives us fruit and also binds us to scrape away its remains. अब हमें जरूरत नहीं पड़ी कि हम commonly use words peel और dispose of को इस्तेमाल करें। हमने बड़े मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किया, remains यानी जो भी फल है उसका जो भी कुछ बच जाता है, whatever it is, तो वो सारा कुछ remains के अंदर आता है। तो remains जो भी है उसको scrape away किया जाए। scrape away का मतलब उसको ज़ाया कर दिया जाए, और इस तरह से ज़ाया किया जाए, किस तरह से, adequately। हम इसमें प्रॉपरली का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एडिक्वली एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लोग अपनी राइटिंग के अंदर इसका इस्तेमाल कम करते हैं। तो आपने जब सेंटेंस बनाना है तो आपने यही देखना है कि आप एक अच्छा इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं, एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं कि हम एक ही वर्ड के कितने वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही वर्ड के कितने सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स हमें आते हैं। तो एडिक्वेटली इज मोर बेटर और मोर I believe more meaningful than properly। और जो लास्ट सेंटेंस है इसको अगर हम देखें तो हमने लिखा जी कि इफ नॉट डिस्पोज्ड करेक्टली द एनवायरनमेंट लैंड गेट्स पोल्यूटेड। इसको शॉर्ट करने के लिए सिंपल हमने लिखा इफ नॉट डन करेक्टली। अगर हम यही काम यानी जो फ्रूट छिलके हैं और जो जो भी रिमेन्स हैं फ्रूट के, वो अगर हम उसे सही तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे, स्क्रैप अवे नहीं करेंगे नॉट करेक्टली, मे मेक लैंड फिल्थ। ठीक है, मुल्क की गलाजत बढ़ जाएगी। यहाँ पे मुल्क के लिए हम बेटर वर्ड इज लैंड। ठीक है, और लैंड जो है उसमें हमने सिंपल सी बात कर दी थोड़े से वर्ड्स में कि वो आपकी जो लैंड है उसको फिल्थी कर देती है। फिल्थी इज अ गुड वर्ड एज कम्पेयर टू पोल्यूटेड। पोल्यूटेड बहुत कॉमन वर्ड है, मेजोरिटी लोग जो है वो यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप फिल्थी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक नया वर्ड यूज करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका जो पेपर है वो स्टैंड आउट करेगा बाकी सबके दरमियान में। तो ये वे होता है एक अच्छी राइटिंग को करने का। आपका काम क्या है, आपने जो स्टेप्स करने हैं, यानी जब आपके पास पैराग्राफ आता है और अब चूंकि अभी आप रिटर्न की प्रैक्टिस करने के पीरियड में मौजूद हैं, यानी आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ट्रांसलेशन के लिए करनी है। सबसे पहले तो ये होता है कि अहम चीज़ कि आप सबसे पहले अपने पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ें और उसको समझ लें कि वो कहना क्या चाह रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप प्रैक्टिस करने के लिए लिखते हैं तो उसको सिंपल वे में ही लिखें, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिखा है। ये पूरा जो पैराग्राफ लिखा गया है ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश के अंदर लिखा गया, इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं लिखे गए, लेकिन इसको सामने रखते हुए आप अपने सेंटेंसेस को अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इसके अंदर हमें जरूरी नहीं है कि हम ये लगाएं नो वन लाइक्स बट हैज टू एक्सेप्ट, मतलब डिफरेंट कोई चीज, तो आप उसे इंटरनेट से सर्च कीजिए, आप देख सकते हैं कौन से वर्ड्स हम लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कौन सा यूज किया जा सकता है, कोई ईडियम इस हवाले से बनता है तो हम वो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इस तरह से आपकी जो रिटर्न की प्रैक्टिस है या जो आपकी पैराग्राफ ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस है वो अच्छी होती चली जाएगी, और एग्जामिनर को इन फैक्ट यही सेंटेंस या यही पैराग्राफ होता है जो उसे चाहिए, और वो एक्सपेक्ट करता है कि एक CSS और PMS का जो एस्पिरेंट है वो एक अच्छी इंग्लिश उसके सामने लेकर आए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको ये अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह से आपने अपने पैराग्राफ को एक अच्छा एंड देना है, और आपको ये भी अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह से आप एक पैराग्राफ को सिंपल इंग्लिश और फिर उस सिंपल इंग्लिश से आप इसे एक इम्प्रूव्ड इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा लिखें और बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस से गुजर के एग्जाम में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वर्ड्स होंगे, आपको यूज करना उन्हें आता होगा, और आप अच्छे तरीके से इसको कर सकेंगे। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिए। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा इंग्लिश का कोर्स इंशाल्लाह जल्दी आएगा। ये लेक्चर जो था काफ़ी गैप के बाद आ रहा है, लेकिन होपफुली कि नेक्स्ट लेक्चर जितने भी होंगे वो एक पूरे सीक्वेंस के अंदर आपके पास आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम PMS के किसी
ट्रांसलेशन के पैराग्राफ को उठाएंगे और उसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और इसी तरह एक CSS का और पैराग्राफ होगा जो कि हम रेंडमली सेलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। आई होप कि आपको इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।